ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲੀਨ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ MLAs ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰੇਜ਼ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਬਕਾ MLAs ਤੇ MPs ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਫੈਸਲਾ? ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਔਕਵਰਡ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ MLA ਬਹੁਤ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 73% ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ MLA ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਮ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 1 ਦਿਨ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰੇਜ ਕਰ ਪਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਅ ਚੇਂਜ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਲੀਵਰੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਹੋਟਲ, ਖੇਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਸ ਸੇ 1980 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫਾਈਨਡ ਹੈਵੀਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੀਜ਼ ਕਾਸਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦੈਮ, ਫਾਈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੋੜ ਪਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚੋਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। सर, अगले सेगमेंट पे चलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स। श्रीलंका क्राइसिस की बात करते हैं सर। राजपक्षे ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया है, पॉलिटिशियंस के घर चल रहे हैं, शूट एट फर्स्ट साइट ऑर्डर हो रहा है एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इंटेंसिफाइज। तो ये कहाँ जाके रुकेगा सर? देखो, अभी जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने तो अपना रिज़ाइन दे दिया है, पर प्रेसिडेंट इज़ स्टिल देयर। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि अब मैं जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उनको टोन डाउन करूँगा और नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। और पर ये एक कहने की बातें हैं, अभी इमरजेंसी रूल लगा दिया जाएगा, और ये जो शूट एट साइट ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर भी देखो एक करप्ट गवर्नमेंट कभी भी अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहती। उन्होंने इतने सालों से श्रीलंका की इकोनॉमिक और सोशल फैब्रिक को बिल्कुल तोड़ के रख दिया है। आज कोई भी बिजनेस अगर जो श्रीलंका में होता है, उसमें वो फैमिली इन्वॉल्व है।
और इस तरह की मायोपिक सोच के साथ जब आप अगेन एक ही पॉलिटिकल फैमिली, एक ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वहाँ पे चलेगी, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि जब पुलिस भी मैं, राइट, जज भी मैं और गवर्नमेंट भी मैं, जब सब कुछ आपकी फैमिली के अंदर ही हो रहा है, तो आपकी कोई भी करप्शन कोई कैसे पकड़ेगा। अब अल्टीमेटली जब लालच हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, व्हाट हैज़ हैपेंड इज श्रीलंका स्पेशली, और कोविड का भी उसका इम्पैक्ट आया, इन्होंने कोई भी श्रीलंका की इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने दी। जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे, इंपोर्ट बेस्ड बिजनेस थे, जहां से उनको कमीशन और कट आते थे, वही चीज़ें चलने दी। श्रीलंका की इकोनॉमी जो सिर्फ टूरिज्म और सर्टन एक्टिविटीज से पे डिपेंडेंट थी, पिछले 20 सालों में उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। वहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं आई, क्योंकि सारा दिन ये लोग पावर स्ट्रगल और करप्शन में इन्वॉल्व थे। तो जब देश के साथ समय के साथ बदलने की कोई विजन ही ना हो, और उस तरह के लीडर अगर आपके देश को रूल कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट विल ब्रेक डाउन, द एंटायर सिस्टम विल ब्रेक डाउन। आज श्रीलंका एक एग्जाम्पल बन गया है, और आई थिंक दिस शुड बी सीन एज वाई डायनेस्टी बेस्ड पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। वो कुछ टाइम के लिए शायद चल पाए, बट अल्टीमेटली इट यू हैव टू पे फॉर इट। और अब जो इतने लोगों को जो सड़कों पे उतरे हैं, इतने लोगों की जान जा रही है, उसके अंदर भी ओपोजिशन पार्टी का यही इल्ज़ाम है कि इन्हीं के सपोर्टर्स जो पीसफुल मार्च है उसको उसके अंदर वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। अब अल्टीमेटली होगा क्या, इमरजेंसी रूल लग जाएगा, आर्मी रूल लग जाएगा, या बेसिकली व्हाट विल हैपन इज प्रेसिडेंट रूल के सिमिलर श्रीलंका में जो भी सिस्टम होता है वो लग जाएगा, और इट विल गिव टाइम फॉर राजपा फैमिली टू कंसोलिडेट। आज वो जो एक वीक पोजीशन पे हैं, वो फिर से अपने आप को कंसोलिडेट करेंगे, वो अपने ही किसी चुने हुए बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, पावर्स फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि जल्दी से जल्दी जितने भी, चाहे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको रिजाइन करना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट वहाँ पे शेयर्ड बेसिकली पावर है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बेस्ड गवर्नमेंट इज बीइंग रन, वहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में मिलके पावर शेयरिंग के तरीके से काम होता है। तो अगर प्रेसिडेंट वहीं रहे और वो नया प्राइम मिनिस्टर ले भी आएंगे, मेरे को नहीं लगता है कि उससे उनकी जो पावर के ऊपर कंट्रोल है वो कुछ कम होने वाला है। इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि राजपा फैमिली से सारे लोग रिजाइन करें और एक नई गवर्नमेंट वहां पे बनाई जाए या नए इलेक्शन करवाए जाएं। उसके अलावा श्रीलंका इस क्राइसिस से नहीं निकल पाता। दूसरा रोल आ जाता है इंटरनेशनल बॉडीज़ का, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस वक्त उनको वहां पे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, गवर्नमेंट की पैसे कैसे खर्च होंगे, गवर्नमेंट को इस वक्त नहीं अलाउ करना चाहिए 1-to-1 लोन लेने का, कि 1-to-1 लोन जब वो किसी देश से लेते हैं उनके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो फंड्स को कैसे डिप्लॉय करना है। जब IMF से फंड लिए जाते हैं तो आपको एक सर्टन तरीके से एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। तो IMF, इंटरनेशनल बॉडीज़ को, और जो भी नेबर में मेजर पावर्स हैं लाइक इंडिया, दे शुड बी ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ताकि ट्रांजिशन ऑफ पावर स्मूथली हो पाए और लोगों की जान ना जाए। आखिरी सवाल सर, चाइनीज प्रेसिडेंट इज सफरिंग फ्रॉम रेयर आर्टरी डिजीज, सो हाउ दिस विल क्रिएट पॉलिटिकल शिफ्ट इन कंट्री? सो चाइना के प्रेसिडेंट इज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल एनोरिज्म। अब इसमें होता क्या है कि ब्लड फ्लो टू ब्रेन रिड्यूसेस, ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी है, जो सेरिब्रल मतलब जो आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। और यही बात थोड़े दिन पहले वाज बीइंग स्पोकन अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ USA ऑल्सो, जो बाइडन। अनफॉर्चुनेटली जो दुनिया की दो सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके अंदर जो सबसे पावरफुल लोग हैं, दे आर नॉट एट देयर फुल मेंटल कैपेसिटी। और अगर हम देखें जो दुनिया में एनार्की सी जो हो रही है, दुनिया में जो वॉरफेयर हर जगह हो रहा है, इसके पीछे दो पावरफुल लोगों की मेंटल कैपेबिलिटीज डिमिनिश होना एक रीजन हो सकता है। दे आर नॉट मेकिंग द बेस्ट डिसीजन फॉर द वर्ल्ड। अब आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि चाइना के अंदर अगर देयर इज चेंज ऑफ पावर, व्हाट विल हैपन। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, पिछले 3-4 महीने से जी जिनपिंग हैज नॉट बीन सीन एनीवेयर, ही हैज नॉट गॉन फॉर एनी बायलैटरल मीटिंग्स। अगर चाइनीज मीडिया की भी अगर आप उनकी न्यूज़ पढ़ें, उनकी भी काफ़ी खबरों में, चाहे लेगेसी की बात हो, चाहे इम्पैक्ट की बात हो, उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट का नाम लेना बंद कर दिया है। व्हाट इट मीन्स इज कि देर आर सम अदर फोर्सेस। अब चाइनीज सिस्टम इतना ओपेक है कि एग्जैक्टली हु इज इन चार्ज
ये बहुत मुश्किल है बताना, बिकॉज दे डोंट ओपन देयर हैंड्स वेरी इजीली. शायद वहां पे समवन एल्स माइट बी इन चार्ज ऑफ टेकिंग डिसीजंस टिल ही इज, मे बी वो उनकी इस वक्त मेडिसिन चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि ही इज नॉट गेटिंग एनी सर्जरी डन, ही इज गेटिंग सम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन. बट एक अगर लेट्स से जी जिनपिंग नहीं भी रहते प्रेसिडेंट या उनकी जगह कोई और आता है, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया को कोई उम्मीद रखनी चाहिए कि उनकी पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया विल चेंज. क्योंकि चाइना के अंदर जो भी पॉलिसी बनती है थ्रू जो भी उनके कोर कमेटी है उसके थ्रू बनती है. अब उसके अंदर वही लोग हैं हु हैव वेरी सिमिलर माइंडसेट एंड दे हैव वेरी एग्रेसिव माइंडसेट, इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट चाइना में एक तरफ आ गया है. वो इस वक्त ये देख रहे हैं कि दे आर द ग्लोबल सुपर पावर और उनको अपने आसपास के रीजन में एब्सोल्यूट हेजेमनी और कंट्रोल चाहिए. तो अगर जी जिनपिंग की जगह कोई और भी डिसीजन ले रहा है, अगर मैं बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर लूँ, उन्होंने 50-60 हज़ार सैनिक अभी भी वहाँ पे खड़े किए हुए हैं और इंडिया भी अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि भाई यहाँ से सैनिक हटेंगे तभी हम दूसरी डिस्कशंस करेंगे. तो मेरे को नहीं लगता है कि अगर जी जिनपिंग अपनी पूरी कैपेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, इस वक्त वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इफ समवन एल्स इज टेकिंग, तो इंडिया को चाइना की पॉलिसी में अभी इमीडिएटली तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा. अनटिल इन द लॉन्ग रन मे बी बिकॉज ऑफ, अगर ये बीमारी सीरियस है और उनकी जगह से कोई और प्रेसिडेंट बनता है और उसका भी उनके वहाँ पे कोई ना कोई एक प्रोग्रेशन सिस्टम बना होगा, बिकॉज दे हैव अ वेरी वेरी स्टेबल पार्टी सिस्टम कि विद इन पार्टी नेक्स्ट प्रेसिडेंट की ग्रूमिंग, हु इज इन पावर, वो सारा कुछ चल ही रहा है वहाँ पे. थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर. ऐसे ही ज़रूरी खबरों के विश्लेषण और इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और अपनी राय ज़रूर हमें दीजिए, सजेशन ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.